हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वाला। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें अपनी आज की रूटीन कैसे बताएं। गाइस, कई बार ऐसा होता है ना कि पास्ट और प्रेजेंट को मिक्स करके कैसे बोलना, ये बहुत ज़्यादातर डिफिकल्टीज आती हैं और हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को इनकाउंटर करते हैं हम डेली लाइफ में, या कहीं भी कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना। अब उसमें क्या हुआ कि पास्ट की भी चीज़ें आ रही हैं और फ्यूचर प्रेजेंट की भी चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो गाइस, उसी चीज़ को हम लोग आज हल करेंगे। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करके बोलकर बताऊंगा कि आपको कैसे बोलना है प्रेजेंट टेंस का यूज करके और पास्ट टेंस का यूज करके। गाइस, आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो एंड तक जरूर देखना है, फिर उसके बाद आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें या कमेंट करें, लेकिन गाइस वीडियो एंड तक जरूर देख लें ताकि आपको समझ में वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो गाइस, चलते हैं बिना वेट किए हुए। गाइस, अगर आप मेरी बात करें कि मैंने आज क्या किया और मेरे साथ क्या ऐसी सिचुएशंस आ गई, मैंने क्या फेस किया टुडे। तो गाइस, टुडे आई वोक अप late because it was Saturday. Generally, I wake up at 7 o'clock, but I woke up today at 10 o'clock because it was Saturday. So I did not set the alarm. I woke up late. Nobody awoke me. So obviously, I couldn't wake up on time. But first of all, I answered the call of nature and then got fresh, got ready, and had breakfast. Generally, guys, I have light breakfast in the morning. Today also I had light breakfast, and then after that had a cup of tea because I don't miss tea in the morning, guys. Because if I don't take tea, really, I just tell you that I really feel headache whole day. So that's why I had a cup of tea. I reached my institute at around 11 o'clock, and then after that I did all my pending works, like filled the forms, updated the forms of the students. I updated all their details, and also called some students to teach them. Some of the students missed some classes last time, so that's why I called them and gave them some extra classes, because actually, guys, they have their exams. I mean, they are going to take exam next week, so that's why I called them and cleared their doubts and I solved their problems. I taught them the lesson which they missed in the previous classes, and after that turned on the computer and I filled the form of my students, and also I updated their form. Generally, guys, I don't have time on other days like Monday to Friday. You won't believe it, but I'm really busy from dawn to dusk. So I keep my Saturday reserved for myself because I so that I can do all my pending works. So today also, it was Saturday, so I just did all my pending works. By the time I got free, it was already 2 o'clock, and then after that, came back to my home, had lunch, and had siesta for some times. And after that, I just woke up and then got fresh again and had a cup of tea, and then went back to my institute. I reached around 3 o'clock because I got stuck in traffic. So that's why I was a little late. I did all my other pending works. And guys, today I called all my staffs, had a discussion on some issues, and then after that, I listened their grievances. I tried to solve their problems. And by the time I got free, it was already 5 o'clock. So I logged my institute and then came back to my home and had snacks and tea. And then after that, went out and bought something like vegetables and other items, household items for the next day. And then came back to my home and had dinner. After that, guys, ambled for some times. And then I just did all my setup. Like you can see the board behind me. And then I set the light and all that. I waited for some times for the children to sleep them, because guys, you know well that when they are awake, so they obviously they create problem for me. I'm not able to make videos, I'm not able to shoot videos, so that's why I waited for them. And guys, you won't believe it is 12 o'clock, and so this time I'm making video for you, and here we would discuss all the problems related to present and past. I have really hectic schedule. I have a lot of works whole day because I have to give classes to my students also. You know well that I have been running institute since 2009, and so that's why I have a lot of works. I have to teach students, and at the same time I have to deal inquiries. Because usually it happens, guys, that once in a week, once in a month, my old friend visit my institute. So I just obviously I have to give some times to them, because if I don't give time, they may feel something else. So that's why I have to manage my time. So like this, I can say that my schedule is really very hectic, so I don't get time. But I don't know about yourself, what you do. You do one thing, that just try to maintain diary, whatever you do daily, like whatever happened with you today from morning to evening. Just you sit down in the evening and you just write down all
the things you faced, all the things happened with you whole day, just you maintain in the diary. Guys, this way you would improve a lot. Don't have any problem in past and present tense. So guys, whatever I spoke, जो कुछ भी मैंने बोला, ये इन सब चीजों को बोलने के लिए मैंने यूज किया प्रेजेंट टेंस, कुछ पास्ट टेंस और एक दो फ्यूचर टेंस भी यूज किया। तो गाइस आपको मैं बताता हूं अब क्या क्या मैंने यूज किया। ज्यादातर मैंने यूज किया सिंपल पास्ट टेंस, इट वाज सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट एंड सेकेंड फॉर्म। गाइस इस पे मैंने यस्टरडे रूटीन भी बोला है, स्कूल लाइफ पे भी बोला है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आज मैच में क्या क्या हुआ उसके बारे में आपको कुछ बताना है, एक रिपोर्ट बोलनी है, तब भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। मैंने कुछ सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज किया गाइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आप कहेंगे सर पास्ट और प्रेजेंट कैसे यूज कर सकते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा मैंने शुरू में बोला कि आई वोक अप अर्ली, टुडे आई वोक अप लेट बिकॉज इट वाज सैटरडे। आज मैं देर से जगा, तो आज मैं देर से जगा, आज जो बता रहा हूं मैं ये पास्ट की बात बता रहा हूं। तो मैं देर से जगा क्योंकि सैटरडे था, मेरे पास कुछ काम नहीं था, लेकिन ज्यादातर मैं यूजुअली, मैंने एक सेंटेंस यहाँ बोला कि यूजुअली आई वेक अप at around 7 am, at around 7 am। मैंने एक सेंटेंस यूज किया कि यूजुअली आई वेक अप एट अराउंड 7 am। ज्यादातर मैं 7 बजे उठता हूं। तो गाइज ये डेली रूटीन का पार्ट है कि भाई डेली या ज्यादातर मैं 7 बजे उठता हूं, लेकिन आज मैं 8 बजे उठा या आज 10 बजे उठा, आज मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं अपना दिन, बाकी दिन जो ना रिजर्व रखता हूं। आई कीप माई सैटरडे, आई कीप माई सैटरडे रिजर्व, आई कीप माई सैटरडे रिजर्व फॉर माई सेल्फ। मैं अपना सैटरडे जो ना, मतलब सैटरडे का दिन मैं अपने लिए रिजर्व रखता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा इस कीप माई सैटरडे, मतलब ये भी मैंने प्रेजेंट में, मतलब कि ज्यादातर मैं ऐसा करता हूँ, ये हमेशा की बात है। तो गाइज जो हमेशा की बातें होती हैं, जो आपका मतलब कह सकते हैं एक नेचुरल एक्टिविटी है, एक हमेशा की एक मतलब एक रूटीन का पार्ट है, तो उसे तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलेंगे। और जो चीजें बीत गई, अभी आप शो कर रहे हैं कि पास्ट में हुआ, तो ऑब्वियसली वहां पे पास्ट टेंस। मैंने कहा गाइस कि कुछ स्टूडेंट्स को मैंने बुलाया उनकी डाउट्स को क्लियर करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो नेक्स्ट वीक या कुछ दिनों बाद एग्जाम देने जा रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे सेंटेंस यूज किया कि दे आर गोइंग टू टेक एग्जाम, दे आर गोइंग टू टेक एग्जाम, मतलब वो एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब उनका एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम देंगे। तो गाइज यहाँ पे देखें कि आप, मैंने कंटिन्यूअस टेंस यूज किया, हालांकि ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। मैंने कुछ सेंटेंस बोला कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी या आप प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, यू वोंट फेस प्रॉब्लम्स, यू वोंट फेस प्रॉब्लम्स इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। इफ यू प्रैक्टिस दिस वे, इफ यू प्रैक्टिस दिस वे, अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज आप देखें यहाँ पे कि कुछ चीजें यहाँ पे पास्ट की जरूरत पड़ी, कुछ चीजों में हमें प्रेजेंट की जरूरत पड़ी और कुछ में फ्यूचर की। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं वादा करता हूं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इस तरह से, इफ यू प्रैक्टिस दिस वे, इफ यू प्रैक्टिस लाइक दिस, तो यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। तो आपको पता है फ्यूचर टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट, और यहाँ पे शैल और विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको पता ही होगा। तो गाइज यहाँ पे आप देखें कि फ्यूचर की जरूरत है तो हमने फ्यूचर टेंस यूज किया। प्रेजेंट की जहाँ पे जरूरत पड़ रही है कि हाँ ऐसा होता है, जनरली मैं ऐसा करता हूँ, मैं सैटरडे को फ्री होता हूँ, मैं अपना दिन फ्री रखता हूँ, जो भी पेंडिंग काम है मैं सैटरडे को ही करता हूँ। तो ये एक मतलब हमेशा की बात है, तो मैंने यहाँ प्रेजेंट टेंस। लेकिन आज मैं उठा और ऐसा किया, सारी चीजें, नाश्ता लिया देर से, खाना भी देर से खाया, ऑफिस भी देर से पहुंचा, तो ये चीजें पास्ट में थी। तो आप देखें मिक्स करके सभी चीजों की यहाँ पे कुछ प्रेजेंट टेंस की जरूरत पड़ी, कुछ पास्ट टेंस की जरूरत पड़ी, कुछ फ्यूचर टेंस की जरूरत पड़ी। तो गाइज ये सारी चीजें अगर आप प्रिपेयर करें और लिखें, जैसे कोई भी कहानी बनाते हैं ना, तो मेरा वादा है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पास्ट टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप किसी भी चीज को इजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे, चाहे वो पास्ट की चीजें हों, प्रेजेंट की चीजें हों। बस एक हैबिट क्रिएट करें, एक हैबिट डेवलप करें कि डेली आप कुछ ना कुछ लिखें, शाम में उससे प्रैक्टिस करें और बोलने की कोशिश करें। कोई जरूरी नहीं कि आपके सामने कोई होना चाहिए या आपका कोई पार्टनर हो जिससे आप बात करें, आप सिंपली रिकॉर्ड कर लें मोबाइल में, फिर आप उस चीज को सुने, एक मिरर सामने रख लें, उसके सामने बोलें। गाइज आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा इस तरह से आपको एडवाइस किया जाता है, और रियली ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। आपकी भी इंग्लिश इस तरह से इंप्रूव हो सकती है, आपको सिर्फ एक लगन की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। तो गाइज होप आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।